हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को बता देते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहली चीज जो डिस्कस करने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अबाउट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और उसके रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू यू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय हाउ मेनी मेथड्स, on the in the all method we have to discuss in this video. First method is the middle term splitting method, second is the completing square method, which is not in your syllabus but I will discuss because we need to find out the quadratic formula. So next we will discuss about the nature of the roots, existence of roots in the quadratic equation, मतलब किस प्रकार से रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं। So let's see quadratic equation. Quadratic equation का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. In this quadratic equation, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. This is the constant term. And in this quadratic equation the coefficient of x square a does not equal to 0. ये 0 नहीं हो सकता जहां पर a b and c these numbers are the real number. These numbers are the real numbers. ये real numbers होते हैं। तो this is the introduction of quadratic equation. So how you define the roots of quadratic equation? So simply we can say that the roots of quadratic equation is roots of quadratic equation is the value of variable, the value of variable which is satisfied the equation, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है ऐसी वैल्यू वेरिएबल का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर लिखा है। x is equal to -2 is root of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कौन? x -2। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाउ वी कैन से? टेक द LHS, x square plus 5x plus 6 and replace x is equal to -2. So LHS is -2 square plus 5 into -2 plus 6, that is equal to 10 minus 10 is equal to 0. That is equal to RHS. So then we can say that x is equal to -2 is satisfied x square plus 5x plus 6 is equal to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x is equal to 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दिस implies that x is equal to -2 is root of x square plus 5x plus 6. So next, how we find the roots of quadratic equation? Roots of quadratic equation को फाइंड करने से पहले we will discuss about the relationship between
roots and coefficients of the x square, x and constant term. So here the relation are mentioned, but we explain this concept by using an example. Let's see an example. 9x square, नहीं 9 नहीं 4x square plus 12x plus 9 is equal to 0. Here the coefficient of x square is 4, the coefficient of x is 12 and the constant term is 9. The coefficient of x square is denoted by a and coefficient of x is denoted by b and constant term is denoted by c. So what is the relation? First relation is alpha plus beta is equal to minus b by a. What is a and what is b and what is the alpha and beta? It is given in the sheet you are seen in the screen. तो यहाँ पर अगर मैं LHS ले लेता हूँ, LHS की बात करूं तो LHS अल्फा प्लस बीटा है। तो सबसे पहले तो हमें इसका जीरोज पता होना चाहिए, रूट्स पता होना चाहिए। इसका रूट्स जो है -3/2 और दूसरा रूट -3/2 सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, -3/2 को जब हम ऐड करेंगे -3/2 से तो हमको मिल जाएगा -6/2, तो -3। Let's check minus b by a. What is the value of b? B is the value of b is 12, so -12 upon 4. When we simplify it, we get -3. So here LHS is equal to RHS. Now we check again alpha into beta. Alpha into beta is equal to c by a is given. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू -3/2, दैट इज इक्वल टू 9/4. देन c by a, value of c is the 9 and value of a is the 4. So LHS and RHS both are equal. So this is the verification of this formula which is shown on the screen. जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस फार्मूले का ये वेरिफिकेशन है। एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता दिया। इसका यूटिलाइजेशन जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और इसका सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है उसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम प्रीवियस ईयर का कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सबसे ज्यादा आपको मैं बताता दिखूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट, यू कैन रीड इट एंड रिलेट टू द एग्जांपल व्हिच आर गिवन बिलो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम कर सकते हैं 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हाउ वी ब्रेक द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इज द 12। तो अब इसको हमें दो नंबर में ब्रेक करना है। एक नंबर में, जब दो नंबर में ऐसे ब्रेक करेंगे जिसका सम हमें कितना मिल जाए 12 और जिसका प्रोडक्ट हमें कितना मिल जाए 9 इंटू 4 के बराबर। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिल रहा है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 एंड 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36। तो इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटेड जो टर्म होगा वो हमको मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Let's see here, in both terms 3x is the common. When we take the common 3x from these terms, so we get 3x
plus 2 and in both terms we can take plus 2 common, we get 3x plus 2 is equal to 0. In whole terms we can see that 3x plus 2 is the common, then in next bracket we can get 3x plus 2 is equal to 0. So here when we find the value of x by separating the 0 of the linear polynomial, 3x plus 2 is equal to 0, we get 3x is equal to minus 2, then x is equal to minus 2 by 3. Similarly next minus 2 by 3. So these are the roots of quadratic equation. We have to find out the by using the middle term स्प्लिटिंग मेथड। तो इस प्रकार से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वी डिस्कस ओनली अबाउट द प्रोसीजर। इसमें हमें करना क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू गिवन होता है, तो हम बेटा क्या करते हैं कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिप्लेस कर देते हैं राइट साइड में, और फिर कांस्टेंट, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर इसको जो राइट साइड में टर्म बचता है उस टर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो जो हमें फार्मूला मिलता है माइनस बी अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड दिस इज आल्सो नोन एज त्रिधराचार्य फॉर्मूला। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इससे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आगे हम इस वीडियो में बताएंगे और उसका यूज क्या है वो भी बताएंगे। तो हाउ वी फाइंड द रूट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेट्स सी। तो अब यहां से हमें करना क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। एक इक्वेशन लेकर के 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया जहां पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 9 है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो when we replace the values of a, b, c in this formula, we get x is equal to minus 12 plus minus square root of 12 is whole square of 12 minus 4 into 9, so this is equal upon 2 into 4। तो x is equal to minus 12 plus minus square root of 144 minus 144 upon 8, so x is equal to, this value will be 0, then minus 12 upon 8. When we simplify this rational number we got minus 3 upon 2. So roots of quadratic equation is x is equal to minus 3 by 2 minus 3 by 2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व किए हैं। अब हम लोग देखते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट इन दिस फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या है, रोल ये है कि अगर इस कोई क्वाड्रेटिक
इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी रियल नंबर है और इसके अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो ऐसे अल्फा बीटा के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके कितने नेचर होते हैं। इसके 3 नेचर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ये अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा ये दिया गया मतलब रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो इनका चेहरा होता है वो कैसा होता है? रियल या डिस्टिंक्ट होता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। या रूट्स जो होंगे, जो ये इनका जो फेस होगा, जो चेहरा होगा वो ऐसा होगा कि ये इक्वल होंगे। और दूसरा क्या हो सकते हैं? ये इक्वल एंड रियल हो सकते हैं। तीसरा ये कि नो रियल रूट्स मतलब कि ये रियल नहीं हो सकते हैं, जिसको आप लोग रट के बैठते हो, नो रूट्स है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किस कंडीशंस में ये होते हैं, वन बाय वन करके हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली कंडीशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में जब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसे केसेस में जो अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं और रूट्स, दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट होंगे और रियल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में कौन सा एग्जांपल हो सकता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है? 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू कितना है? 6। जरा d की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू कितना है? 6। तो कितना आ गया? 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, सेकंड कंडीशन क्या है? कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए, मतलब कि d इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। So here a is equal to 1, b is equal to 12, c is equal to 36. Now d is equal to b square minus 4ac. So what is the value of b? b is 12 square minus 4 into 1 into 36। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 36। तो 144 द स्क्वायर ऑफ 12 minus 4 36 जा 144, that is equal to 0. So d is equal to 0. When d is equal to 0, then we can say that the quadratic equation having real and इक्वल रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस प्रकार के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसके d इज इक्वल टू 0 होता है, वो कैसे रूट्स रखते हैं? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ऑफ
द नेचर ऑफ रूट्स। कंडीशन कह रहा है कि जब d की वैल्यू d इज लेस देन 0 तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब क्या हो सकता है, नो रूट्स। सीधी सीधी सी बात है, अगर रियल नहीं होगा तो नो रूट्स होगा। You cannot find the roots, but you can find the root in the higher classes. That roots will be complex number in the complex number. But here we discuss how we can say that the quadratic equation have no real roots. To take an example, x square minus x plus 6 is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to minus 1 and c is equal to 6. So a is equal to 1, b is equal to minus 1 and c is equal to 6. What is the value of d? B square minus 4ac. When we replace the value of a, b, c in this relation, we got minus 1 square minus 4 into 1 into 6. So square of minus 1 is the 1 and product of 4, 1 and 6 is the 24. So difference of 1 minus 24 is the minus 23 less than 0. Here d is less than 0. When d is less than 0, then we can say that the quadratic equation x square minus x plus 6 is equal to 0 has no real roots. No real roots, ये रियल रूट्स को नहीं रखता है। तो यहां पर मैं आपको एक फार्मूला डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक मैं फार्मूला डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को यूज होगा, पॉलिनोमियल में भी आप लोग यूज करेंगे, यहाँ पर भी कई प्रॉब्लम्स में आप यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूं। आप लोग वीडियो रोक करके बैक करके आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। जो फार्मूला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अक्सर करके आप लोग भूल जाते हो। मैंने शायद इसको डिस्कस किया है पॉलिनोमियल में, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर डिस्कस करूं, बताना बहुत जरूरी है। ये फार्मूला यूज कहाँ होता है ये सबसे पहले जान लो। ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स, इसमें यूज होता है। पहला क्या, जैसे अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यू नो वेरी वेल ए बी सी क्या होंगे, ए क्या होगा। तो फर्स्ट इज व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। थर्ड व्हाट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। वी कैन राइट हियर माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए कैंसिल, you can write minus b by c directly. Third thing, alpha minus beta, पहले अल्फा माइनस बीटा से पहले हम निकालना चाहते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड फोर्थ थिंग अल्फा माइनस बीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधी सी बात है। अल्फा माइनस बीटा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
तो इसका जो वैल्यू अभी हमने निकाला वो क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 alpha beta. Already here minus 2 alpha beta, then we can write alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta. Taking square root, then it can be written in this. So alpha minus beta की जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और फिर जो इसमें और भी वैल्यूज होते हैं, तो इतना जो है हमें लगता है पर्याप्त है। लेकिन एक और मैं बता दे रहा हूं, जैसे 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, इसमें भी पूछा जाता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और भी फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फार्मूले आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे, हम जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पर मैं सारे फार्मूले के बारे में जिक्र कर दूंगा। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। चाहे जितना आप मेहनत करोगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग पे किसी भी प्रकार का जोर लेने की जरूरत नहीं है। 100% आप जितना एफर्ट करेंगे उतना आपको फायदा जरूर मिलेगा। कीप स्माइल, कीप हार्ड वर्क एंड गेट द गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।